Bismillahirrahmanirrahim. I welcome all of you to the online English class of Divisional Public School and College Sahib. My name is Mariam Saeed and I am your English teacher. Today I have came up with a story time, so let's get happy. But first of all, tell me that do you like pets or which pet do you have at your home? And today's story is from your Oxford Modern English book and it's unit number 9 and the name of the unit is Karate Parrot. So, by the end of this lesson, you all will be able to identify the main series of events of the story Karate Parrot and recognize the meanings of the difficult words. So, let's begin our story. Once there were three friends. Two of them, Adil and Babu, were waiting for the third one, Sameer. तीन दोस्त थे आदिल बाबर और समीर Adil and Babar were sitting at the movies cafe and they were waiting for their third friend Sameer. तीन दोस्त थे आदिल और बाबर जो हैं वो मोबिस कैफे पे बैठे हुए थे and they were waiting for their third friend Sameer. तीसरे दोस्त समीर का इंतज़ार कर रहे थे and they were sitting on the table that was quite near to the main door window. विंडो के बिल्कुल पास वाले टेबल पे वो बैठे हुए थे जहाँ थे से they were looking at the main street. But you know what was amazing? The third friend Samir came with a broken foot on his crutches, bit late to join his friends. जब उनका तीसरा दोस्त आया, he came with a broken foot and he came on the crutches. Crutches ये जो tool आप देख रहे हैं which he was using for walking when he has a broken foot उसे crutches कहते हैं. ये जो बैसाखियाँ आप इस्तेमाल करते हैं यू चलने के लिए इसको crutches कहा जाता है. As he approached there and heaved himself on the chair, they exclaimed, जैसे ही तीसरा दोस्त समीर वहां पे पहुंचा और अब वो चेयर के ऊपर बैठा तो जो पहले दो दोस्त थे आदिल और बाबर वो एक्सक्लेम्ड उन्होंने हैरान होकर पूछा व्हाट यू हैव बीन अप टू तुम कहाँ बिजी थे तो उस पर तीसरे दोस्त ने जवाब दिया समीर साइड एंड सेड साइड उसने बड़ी उदासी से कहा यू विल नेवर बिलीव व्हाट हैड हैपेंड टू मी बट बेटर ऑर्डर मी एन एस्प्रेसो फर्स्ट एस्प्रेसो इट्स अ कॉफ़ी इट्स अ काइंड ऑफ कॉफ़ी उसने कहा कि आप लोग बिल्कुल यकीन नहीं करोगे कि मेरे साथ क्या हुआ लेकिन बेहतर है कि पहले मुझे एक कॉफ़ी का कप पिला दो द वेटर केम विद अ स्टीमिंग कप ऑफ एस्प्रेसो समीर took a sip, wiped his mouth, smiled, and began. अब वो अपनी स्टोरी सुनाना शुरू करता है Now let's see what he told them. As my wife Sarah always begged for a pet, dog or a cat, to keep her a company. But the problem is, we live in a flat and it's not fair to imprison them in such a small place, in my opinion. वो कहता है जैसा कि मेरी जो वाइफ है सारा उसको हमेशा से शौक है कि कोई ना कोई पेट हो उसके पास ताकि उसको कंपनी मिल सके क्योंकि मेरे तमाम बच्चे जो हैं वो बड़े हो चुके हैं एंड दे हैव ऑल गॉन अब्रॉड वो सब बाहर जा चुके हैं लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम एक बहुत ही छोटे से फ्लैट में रहते हैं और मेरी ओपिनियन के अकॉर्डिंग मेरे ख्याल के मुताबिक जो है वो ये अच्छा नहीं है फेयर इट्स नॉट फेयर कि आज़ाद रहने वाले जानवरों को इस तरह की छोटी सी जगह पर कैद कर दिया जाए So on Thursday, when I went to finish my errands at the bank and do some shopping, so Thursday वाले दिन जब मैं अपने बैंक में कुछ काम निपटा रहा था और शॉपिंग के लिए गया हुआ था दूसरी तरफ जो है वो मेरी वाइफ सारा ऑन द अदर हैंड डिड नॉट टेल मी व्हाट हर प्लान्स वर उसने मुझे बिल्कुल नहीं बताया कि उसके क्या प्लान्स थे शी एंडेड अप इन अ स्ट्रेंज लिटिल पेट शॉप टू हैव सम अदर पेट अराउंड वो एक पेट शॉप पे चली गई ताकि वो एक कोई और पेट लेकर आ सके जो उसके साथ रह सके डॉग और कैट के अलावा कोई और पेट
वहाँ पे जो असिस्टेंट था ऑन द पैट शॉप, he listened to Sarah's problem attentively and suggested she might like to buy a parrot. अब प्रॉब्लम क्या था कि उनके फ्लैट जो था वो बहुत छोटा था एंड दे डोंट हैव मच स्पेस टू कीप अ पैट. So the assistant suggested that she may like to buy a parrot. कि वो एक parrot खरीद ले. Parrot, said Sarah in astonishment. उसने हैरान होते हुए कहा कि parrot, what comfort can I get from parrot? उससे मुझे क्या मिलेगा? The young man said, I'm not talking about an ordinary parrot. मैं किसी आम तोते की बात नहीं कर रहा. It's very unique. Unique means it's very special and will give you hours of amusement. और इससे आपको बहुत जो है वो कंपनी मिलेगी. ये आपको amuse करेगा. It will entertain you. It is the only karate parrot in the country. इस पूरे मुल्क में ये वाहिद कराटे पैरेट है. माई वाइफ आस्क्ड क्यूरियसली. उसने हैरान यानी क्यूरियसली मीन्स मुतजस्सिस होकर पूछा, व्हाट इट डज डू. ऐसा ये क्या करता है कि इट इज़ दैट मच यूनिक कि आप इसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं. ये क्या कर सकता है. अब उसको असिस्टेंट दिखाएगा कि why it is unique and why it is of only its kind in a country. The assistant demonstrated by stretching out his arm. अब वो उसको demonstrate show करके दिखाएगा कि what does it can do. उसने अपनी जो है वो बाजू उसको stretch out किया. He opened the cage and parrot ambled out on his shoulder. Ambled means कि वो उड़कर आकर उसकी बाजू पर बैठ गया. Now let's see. मुझे भी काफी तजस्सुस हो रहा है. What this parrot can really do. So let's see. He then said, Parrot, karate chair. The parrot immediately attacked the chair. जैसे ही उस असिस्टेंट ने कहा, पैरट कराटे चेयर, चेयर को कराटे करो, तो पैरट ने फौरन जो है वो चेयर को अटैक कर दिया एंड रिड्यूस टू अ पाइल ऑफ शटर्ड पीसेस ऑफ वुड. और उसे लकड़ी के बेशुमार छोटे छोटे टुकड़े कर उसका ढेर लगा दिया. पायल मीन्स ढेर. शटर्ड पीसेस ऑफ वुड, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए. It's all very unique parrot. It's really a unique parrot. I have never heard or seen of such a parrot in my life. So his wife Sarah exclaimed with joy and said, Done, and brought it home. उसकी बीवी जो थी सारा वो बहुत ज़्यादा खुश हुई और उसने फ़ौरन कहा कि डन हो गया और उस पैरट को वो अपने घर ले आई. The parrot practiced his skills for hours and amused my wife by not getting tired of this activity of destroying the things. जैसे ही वो उस घर लेकर आई, उसने अपने घर की तमाम पुरानी चीज़ें निकाल कर पैरट के सामने रख दी और उसको प्रैक्टिस कराती रही उसका स्किल, यानी उसको कराटे कराती रही और इससे वो काफ़ी घंटे तक खुद भी खुश होती रही और पैरट भी बिजी रहा. पैरट ने उसके तमाम घर की जितनी भी पुरानी चीज़ें थी उन सब के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए. वो चीज़ों का नाम लेती रही और पैरट को कराटे कहती रही. When I returned home and saw my wife and parrot in a sitting room, I inquired about the creature. जब वो घर वापस आया और उसने अपनी बीवी सारा और पैरट को सिटिंग रूम में देखा, he inquired about the creature. तो उसने उसके बारे में पूछा कि ये क्या है. I got annoyed when she told me how much it cost. जब सारा ने उसको तमाम स्टोरी सुनाई और बताया कि ये वो कितने में लेकर आई हैं, it is not an ordinary parrot. She explained sweetly. तो वो बहुत नाराज़ हुआ, जिस पर उसने बहुत स्वीटली उसको एक्सप्लेन किया कि ये कोई आम पैरट नहीं है. इट्स अ कराटे पैरट. ये कराटे पैरट है एंड ओनली ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री. और अपनी किस्म का एक ही पैरट है पूरे मुल्क में. जब उसने उसको ये बताया तो समीर ही क्राइड इन अ डिस्गस्ट एंड डिसबिलीफ. और उसे इतना गुस्सा आया
कि उसने कहा, व्हाट, पैरट और कराटे, माय फुट। तो इस पे जो है वो जो पैरट था वो फटाफट उसके फुट पे आया, पाँव पे आया और कराटे कर दिए। सो व्हाट डू यू थिंक, क्या हुआ होगा? यस, ये हुआ। एंड इट वॉज द लास्ट थिंग आई सेड बिफोर दैट वाइल्ड बर्ड अटैक्ड माई फुट। जैसे ही उसने कहा कराटे माय फुट, तो जो पैरट था उसने उसका पाँव जो था वो तोड़ कर रख दिया। तो ये लास्ट चीज़ थी जो उसने कही थी। और वो जो वाइल्ड बर्ड था, वाइल्ड मीन्स इवल एंड शेमफुल, उसने जो है उसके फुट पे अटैक कर दिया। सो now let's come to the difficult words from this unit and their meanings. Crockery means plates, cups, and saucers. जितने जो बर्तन होते हैं घर में उसको क्रॉकरी कहा जाता है. Demonstrate means to explain or describe how something works. असिस्टेंट ने उसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया था, एक्सप्लेन किया था और डिस्क्राइब किया था. Unique means only one of its kind, superior to all others. स्पेशल जो चीज़ होती है उसको यूनिक कहा जाता है, जो बहुत आम नहीं होती. ठीक है. वाइल बर्ड के लिए यूज हुआ है, इट मीन्स इवल, शेमफुल एंड अनप्लेजेंट. कराटे, इट्स अ जापानीज फॉर्म ऑफ अनआर्म्ड कॉम्बैट. आपने ये देखा हुआ है कि कराटे किसको कहा जाता है. इट्स अ जापानीज फॉर्म. ठीक है. जापानीज इसको गेम तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इट्स एन फॉर्म ऑफ एन आर्ट. ऑटोमेटिकली मीन्स जो कि खुद ही से ऑपरेट हो जाती है मशीन. एस्प्रेसो मीन्स डार्क स्ट्रॉन्ग टेस्टिंग कॉफ़ी मेड बाय पासिंग स्टीम और वाटर थ्रू कॉफ़ी ग्रेन्यूल्स. कॉफ़ी के जो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, उसके जो दाने होते हैं, उसमें जब आप स्टीम पास करते हैं तो उससे जो है वो कॉफ़ी बनती है. इसको एस्प्रेसो कहा जाता है एंड इट्स क्वाइट टेस्टी. हीव्ड का मतलब होता है लिफ्टेड, यानी बैठना. या, या आप चल के आ रहे हो और किसी चीज़ के ऊपर बैठ जाएं, इट मीन्स हीव्ड. सो नाउ it's assessment type. You have to tell the correct answers of these um, questions. Answers are with these. Why Sarah wanted to have a pet? Because she feel lonely. And what does the wild means? Evil, shameful, and unpleasant. Which pet did Sarah finally choose? You all know. It's a parrot. Now it's a homework time, and your homework is that you have to share your pet story, right? Which unique pet do you have at your homes? You have to tell its unique characters. You have to write your story on your notebooks. So, thank you all. It's all from my side, and I hope you have enjoyed the story. Thank you. Allah Hafiz.